Good morning, everyone. Please confirm that my voice is loud and clear. Okay. So thanks for the confirmation. Yes. Uh, okay, guys, can I request every one of you to please keep yourself muted until I ask you to unmute yourself. Please, everyone, do not unmute yourself. If you want to communicate with me, try messaging me first. If it's required, only then we go ahead with the uh, muting and unmuting phase because it hampers the complete experience of the online training. Fine. So I will wait for 2 more minutes so that if anyone is left, they can join and then we can start with the session. Okay. Yeah, students, those who are raising their hand, they can ask their doubts if they have any doubts. Uh, Let me see who are raising their hands. Just 1 minute. Sanjeev Kumar, Pavan Kumar, Misra Ansach, and Vishnu Kumar. Okay. Yeah, Sanjeev, you can unmute yourself. If you have any questions, then you can ask your question. Vishnu Kumar says, sir, Hindi mein please. Okay, Vishnu. Again, guys, one just again, I'm telling the same thing. It will be both in English and Hindi. Okay. Uh, Today, can I can share screen or not, sir? I hope yeah, might be you are in a position to share your screen. I think. Let me see. Just 1 minute. Abhishek Anand. Where is the guy? Abhishek Anand. Abhishek Anand. Yeah.
Mr. Unsurge, sir, please talk to me. Yeah, I'm talking to you, Unsurge. You can type the query in the chat window. Sir, I'm unable to attend. Just 1 minute. Let me see the messages first. Sir, I am unable to attend yesterday's class. Will I get a recording of that session, sir, please? Okay. Okay, Shally. Just let me see. Isa Mahajan. Recording will not be provided. You have to attend the lecture live. Okay. So see, you're getting the responses directly from the management that you're not going to get the recording of the sessions. Hello, hello, Yeah, hello. sir. Are, are you able to hear me? Yes, I'm able to Mishra, hear you. sir, from yesterday I'm trying to contact you. Can you give me some your executives number so that I have some doubt actually और उसको मैं बात करके कुछ क्लियर करना चाहता हूँ. Okay. Are you hearing me, sir? Yeah, I'm able to hear you, Sanjeev. It's मिस्टर Sanjeev. मिश्रा. Mr. Ansaj. Okay, yeah, Mr. Ansaj. सर कल से ही मैं आपका फोन नंबर ट्राई कर रहा हूँ या आपके एग्जीक्यूटिव का. मुझे जरा हाँ कोई हाँ. नंबर दीजिए. दो तीन डाउट्स है वो मुझे पूछना है उन लोगों से. Okay, you want my फुल. number, right? यस सर, यस सर. See, I cannot share you my number directly. I don't think that ये is permissible. But I will provide you my email ID first. From ईमेल that, आईडी you दीजिए और एक आपका कोई एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका नंबर दीजिए. कुछ बात डाउट है वो पूछना है मुझे. कल एक्चुअली मैं आपका सिर्फ मतलब हार्डली 30 मिनट्स का लेक्चर अटेंड कर पाया और अच्छा. गूगल मीट में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. Okay. तो उस जूम का कोई लिंक आप अगर क्रिएट कर सकते हो तो भेज देते हैं मुझे. अचानक मुझे पता चला कि आप गूगल मीट पे ले रहे हैं सेशन और मुझे इससे हम्म. मैं इसमें फैमिलियर नहीं हूँ. कोई बात नहीं. अगर आपको इसमें सेटअप में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो मैं आपको उसके लिए गाइड कर दूंगा. गूगल मीट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मिश्रा. तो नहीं सर, आप गूगल में कर दीजिए ना प्लीज, अगर अ, पॉसिबल हो तो. हाँ, वो पॉसिबल भी होना चाहिए ना. अब मान के चलिए, हाँ, देखिए कैसा होगा ना. आप बोलेंगे जूम पे, अगर दूसरा स्टूडेंट कहीं और पे बोलेगा. इससे अगर मुझे ठीक है. एक मैं जगह पे सब जगह पढ़ाना होगा ना, तो भी दिक्कतें आती है. हाँ ठीक है, हाँ, वो मैनेजमेंट से एक बार बात ठीक है. किया जा सकता है, लेकिन आज जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका गूगल मीट पे ही सेशन होगा. अगर आपको दिक्कतें आ नहीं रही ठीक है है. तो मैं आपको हेल्प कर अगर देता हूँ ना पूरा सेटअप करने में. अच्छा, इसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो कम्युनिटी में आ सकता है क्या आपका? हाँ, इसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए. आई हाँ थिंक तो अभी जब वही. मैम ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है कि आपको इस सेशन के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स नहीं मिलेंगे. तो I cannot help with that. I'm really sorry for that, Mishra. That is something that are not being taken care of by me. That is taken care of by the management itself. So for that, you need to have to talk to एक्चुअली the मुझे man. आपका क्लास बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर लग रहा है सर. और कल का जो मैंने 1 घंटे का सेशन मिस किया, मुझे बहुत अफसोस है. तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा. तो प्लीज आप कुछ हेल्प करें मेरा तो हाँ ठीक हाँ, रहेगा. ठीक 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 ठीक. तो Uh, आप I don't यूँ know समझ whether I लीजिए can कि share. Yeah, I don't know. See, I don't know whether I can share my number. लेके हाय हेलो, कोई एग्जीक्यूटिव का ही नंबर या किसी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का नंबर ही भेज दीजिए, क्योंकि अभी मीटिंग हो रही है. इस पे सारी बातें मुश्किल है करना सर. I will share you my email ID सबसे पहले, ठीक है. That will be हाँ. something that you can try for contacting me, ठीक है. I think I'm यस, comfortable with sharing my email ID, so I can share you my email ID, ठीक है. Will प्लीज that सर, be okay for प्लीज you? शेयर. एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट इट विल बी ओके, बट जो Okay, प्रॉब्लम है वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा. मैं चलो. पटना से हूँ. मैं पटना से हूँ, अच्छा, पटना में कहाँ से हैं? रिसाइडिंग इन पटना. एक्चुअली मैं भागलपुर का हूँ. पटना अच्छा, में मेरी भागलपुर के सिस्टर हैं. रहती है. हाँ, और रहता मैं मुंबई में हूँ पिछले 20-22 साल से. तो अच्छा. आपका Okay. लेक्चर, मैं 20 साल से कंप्यूटर फील्ड में हूँ, बट यू आर द बेस्ट आई थिंक, वेब, एज लॉन्ग एज द वेब डिजाइनिंग मैटर इज कंसर्न. तो मुझे बहुत पसंद आया है आपका लेक्चर, और ऐसे लोग मिलते कम हैं.
तो इसलिए मुझे कुछ या तो बात करना है या कुछ ये करना है। ठीक है, कुछ आप मुझे, डाउट्स मैं है आपको क्लियर email- करना है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ईमेल शेयर कर देता हूँ। और भी कोई सर, स्टूडेंट्स अगर हाँ। हैं, जी बोलिए, और भी कोई है क्या? सेशन जल्दी चालू आपका करिए सर। यूट्यूब पे कुछ चैनल है क्या सर? यूट्यूब पे हाँ चैनल हाँ है क्या? हाँ हाँ, है ना। तो उसमें मिलेगा ये सारा मैटर जो हाँ आप हाँ, लेक्चर आप ले रहे हैं? यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, डिकोड क्राफ्टर्स, @डिकोड क्राफ्टर्स सर्च कीजिएगा, आपको मेरे हाँ। कंटेंट्स वहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पे भी। कल जो सेशन लिया था वो से लेके आगे जो लेंगे वो सब अवेलेबल रहेगा क्या? मैं वहाँ पे HTML CSS से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं सेशन। तो बट वो सी उसमें जो सेशंस अटेंड करते जाइएगा, सेशंस का देखो, यूट्यूब पे डालने वाला चीज अलग होता है। यूट्यूब में मैं 10-15 मिनट का वीडियो डालूंगा, यहाँ पे मैं 2 घंटे का सेशन लूंगा, दोनों में बहुत अंतर होता है, ये आप जान लीजिएगा। ठीक ठीक है, ठीक है, मैं मुश्किल तो समझ रहा हूँ आपकी, ये मैं समझ सकता हूँ। और मैं समझ सकता उसमें से जो आपका यूट्यूब चैनल है संजीव ना, प्लीज वो कीप आप योर मेल सेल्फ में अपना, म्यूटेड। वो मेल में वो जो आपका यूट्यूब चैनल है ना उसका सर अब नाम भी क्लास लिख शुरू दीजिएगा। कीजिए सर अब क्लास शुरू। Guys, listen. Everyone, those who are messaging, try and understand. See, it's not just about this guy. There will be certain points where you will be like, I need help from sir. Okay, and during that given point of time, it fills up like something that I need someone who can help me out. Understand, students? I myself, I am a trainer for in front of you, बट इस बात को समझिए कि मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। एंड आई नो कि वो डिफिकल्टी किस तरीके से आती है जब कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक बहुत ओल्ड सेइंग है दैट द वन हु हैज सीन द टफ टाइम्स और द बैड टाइम्स, ही और सी अंडरस्टैंड व्हाट अ गुड टाइम्स मीन। तो जिसने वो तकलीफ देखी है, वो खराब समय देखा, उसको पता होता है कि क्या तकलीफें आती है, और ये हर स्टूडेंट्स के लिए आता है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो रहे हैं कि मत बोलिए ये वो, आपको क्या लग रहा है वो एक ही इंसान का कंसर्न होगा? आपको नहीं कंसर्न आएगा। बहुत आप लोग बहुत स्मार्ट हैं कि आप अभी HTML से स्टार्ट करें, चलो HTML आता होगा, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड, एक्सप्रेस, आप कहीं पर फंसेंगे नहीं, आपको कहीं दिक्कतें आएंगी नहीं। सो प्लीज डू नॉट बी दैट रूड। सभी को दिक्कतें आती हैं, एंड इवन स्टूडेंट्स वांट कि वो अपने क्वेरीज पूछ सके, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। सो आई वांट एवरीवन ऑफ यू टू कम्युनिकेट, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार ईमेल शेयर कर देता हूँ एंड आई विल कंटिन्यू विद द सेशन नाउ। फाइन, चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जस्ट 1 minute. Okay, now students, 1 minute. ओके, चलिए। अब कल हम लोगों ने डॉम के बारे में बात की थी, और हमने इस बात को समझा था कि जब हम HTML पे कोई कोड लिखते हैं और जब वो हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है, उस फेज में हमारे लिखे हुए लैंग्वेज को वो डॉम ट्री पे तोड़ता है, and then we get the display on the web page. I think that at least till that point, everything for everyone over here, that DOM tree concept is very clear. Fine. Now I will take you to the screen directly, and we start with setup for the HTML and everything. So first thing first, I want every one of you to open Visual Studio Code. Just go to the Google section and search for VS Code Editor. Okay, and try downloading this IDE. There may be possibility कि कुछ स्टूडेंट्स के पास ये कोड एडिटर डाउनलोडेड हो,
अगर है तो आप उसे ओपन कर लीजिए. If not, then please download this. I'm allowing 2 minutes, everyone. Go and download this code editor. We are going to use this code editor for putting up all our HTML sections and coding वगैरह everything जो भी हम करेंगे. ठीक है. अभिषेक आनंद raised their hand. Yes, Abhishek. Guys, if you're raising your hand, understand, I will feel like that you have any doubt. If you want to communicate or say, yes, I have X, Y, Z, anything, go with reactions, not with raising your hands. Okay. Along with that, for those students who want to contact me, they can go and visit this Decode Crafters website from here. Okay. And from here, you will be in a position to find all the courses and everything. I've shared you this link yesterday. For some students, they were complaining that they were not able to see it clearly, but you can follow that thing from here. So from this block section, if you want, you can open this HTML markup language. Now over here, you will get the complete PPT for the explanation of the HTML, right? And using this PPT, see, so you will have the complete notes that you can study from here. What is HTML? HTML is a hypertext markup language. Okay, so we have done this discussions. If you have any queries, you can just go through. And it describes the structure of a web page. Structure मैंने बताया था. It's like a skeleton. Okay. HTML elements are represented by tags. We are going to talk about tags, elements, and attributes today, so you don't have to worry for that. Confused? UI architecture. I have explained this thing yesterday as well. That first you have the HTML, that is the skeleton. Fine. That means your UI as a skeleton. Then you provide close and beautification, that is the CSS part. Fine. And the functionality that are added to that particular human nature is known as JavaScript. So by using JavaScript, we are able to add interactiveness to our web pages. I think this part is very clear to everyone now, and I'm hoping no one has any doubt for this. So introduction to HTML. HTML uses a set of built-in tags and closed-in angle brackets. If you know about this, well and good. If not, we will see. तो जितने भी HTML के एलिमेंट्स या टैग्स वगैरह हम लोग पुटअप करते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स में पुटअप किए जाते हैं. एंड वी हैव सम टैग्स दैट आर लाइक HTML, p tag, etc., h1 tag, div tag. So there are multiple tags that we can talk about in HTML. Okay. So HTML code will have the file extension as .html, and HTML is used to write user interface for web development programs. So I think this is very clear now. I've told you yesterday that any web page or any website that you're opening, it is always getting opened by using HTML. मैं आपको दिखा देता हूँ. As an example देख लीजिएगा. मैं यहाँ पे इसको back करता हूँ, ठीक है? And let's say I'm using the same website for the reference. Okay, I'm not mix and matching the same thing again and again. Let me show you. Now let's say this is a website. अब अगर मैं इस वेबसाइट पे जाके ना, I will right click and I will click on inspect. देखिए यहाँ पे आपको inspect दिख रहा होगा. Let me just close this. अब मैं यहाँ पे जाऊंगा. I will right click and I will click on inspect. See, और ये आप लोग सभी कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे जाके, और आपको दिखेगा that anything that is getting displayed, you can see the same HTML elements coming up. This is the HTML. ये देखिए ये पूरा का पूरा HTML. अगर कोई स्टूडेंट जिनको HTML मालूम होगा उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है. ये सारा का सारा HTML है. कैन यू सी दिस क्लोजिंग ऑफ HTML? और एकदम टॉप में लेके चलूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे start of HTML. See this? And some CSS are being written down over here. So this is the CSS part, means the beautification part. तो आप, अब मैंने एक वेबसाइट का रेफरेंस दिखाया, आप बोलोगे सर ये तो आपने एक का दिखाया. चलो अब मैंने जो कल बात बोली थी वो आपको दिखा देता हूँ. एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ओपन कर दूं यूट्यूब. ओके, अब यहाँ पे यूट्यूब पे भी जाके इफ आई राइट क्लिक and click on inspect, see, you will see the same HTML coming up again. And again, see this HTML?
Not just for YouTube again. I can talk about Jio Hotstar, Netflix, Amazon Prime, जो भी वेबसाइट्स आप जानते हैं वो सारे के सारे HTML के थ्रू डिस्प्ले हो रहे हैं. अब HTML सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे? I will be closing all this. और ये मैंने कल बताया था that this part over here is being written in the head section and anything that is getting displayed on my web page that is being put up inside the body part. ये भी मैंने कल आप लोगों से बात की थी और ये बताया भी था. ठीक है, अब हम लोग क्विकली चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे. Now once you have downloaded your code editor so yeah. So this is going to be the interface once you have downloaded your VS Code editor. ठीक है, now after downloading this what you have to do is कोई भी एक फोल्डर पे ध्यान रखिएगा, एक फोल्डर में रखिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बस ऐसे ही यहाँ पे उठा के और बस डालना स्टार्ट कर दिए. एक प्रॉपर फोल्डर बनाइए. मैं आपके सामने बनाता हूँ. लेट्स से आई एम क्लिकिंग ऑन ओपन फोल्डर and as an example I'm taking local disk F. Okay, and inside this, or let me take local disk D. Okay, and I will be creating a new folder here. Okay, and I will be naming this as what I can say UI batch 26. Okay, now I will be selecting this folder. Now I have a dedicated folder that is being opened, and inside that folder I will be creating the files for HTML and we will be understanding and talking about HTML in depth. Fine. Now I click on yes, I trust the authors and I will be closing everything from here. अब यहाँ पे मैं जाऊंगा and I will be clicking on new file. ठीक है, and I hope कि आप लोग भी देख रहे हैं, अगर होगा तो आप लोग इसको फॉलो करोगे साथ साथ. I will be clicking on this new file and let me rename this file as what can we say for the file name? Let me say this file name as index.html. जैसे मैंने आपको भी PPT पे दिखाया था that HTML files have this extension as .html. तो हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है. I hope everyone understand that part. Let's say I'm opening a video. So a video has an extension. Let's say .mp4 or .flv. Same goes for music. It's .mp3, .mpeg. Okay, same goes for images. It's .jpg, it's .png. It goes for the document files like it is .docx, docs file है या फिर .pdf है. तो इन द सेम वे अगर हम HTML की बात कर रहे हैं तो HTML फाइल के लिए हमें एक्सटेंशन यूज करना होता है नेम ऑफ द फाइल एंड .html. सो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए HTML बन जाता है एंड वी विल बी क्विकली ओपनिंग अप दिस फाइल हियर. ठीक है, अब वापस से उस विषय पे हम आते हैं जो हमने कल बात किया था. मैंने आपको बताया था कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इसको यहाँ पे आप रख लीजिए, बात याद कर लीजिए कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है. तो अगर वो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे उसको वो अंडरस्टैंड करके डिस्प्ले कैसे कर रहा है, वहां पे आता है डॉम ट्री. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ, उसको इंटरव्यूअर्स पूछना पसंद करते हैं, बहुत पसंद करता है. अब अगर आपका ये VS कोड ओपन हो जा रहा है, जस्ट शिफ्ट 1 enter, you will have the complete boilerplate in front of you. See this again, I will be showing you this part again. Press shift 1, you will be getting this abbreviation, click on enter and see we have the complete boilerplate here. Now let me just zoom this for everyone. Okay, अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था ये HTML रहेगा और HTML के अंदर दो सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन आपके लिए जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द हेड पार्ट, करेक्ट, एंड सेकंड इट्स गोइंग टू बी द बॉडी पार्ट. अच्छा, कल जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये बहुत क्लियर किया था कि हेड का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना. वो किन तरीके का इंफॉर्मेशन रख सकता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. बॉडी, बॉडी का काम क्या है, डिस्प्ले करना. तो जो भी कंटेंट्स हम डिस्प्ले में देख रहे हैं या जो भी हम वेब पेज पे देख रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्प्लेड यूजिंग दिस बॉडी. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आएगा टैग्स और एलिमेंट्स का. हम आते हैं उस पे, पहले इसको देखते हैं एंड देन वी विल कम टू दैट पॉइंट. अब क्यों ना जो कल हम लोगों ने लिखा था ना वहाँ पे पेपर पे और उससे बताया था कि हम डाउन ट्री पे तोड़ेंगे एंड वी विल बी गेटिंग समथिंग डिस्प्ले. सो व्हाई डोंट वी डू इट द सेम वे.
I will be renaming this document from here to HTML. Okay, so I'm renaming this file to HTML. Okay, and inside the body part over here, again, body means the display part. So I'm taking one heading, and I will say, uh, welcome to the introduction session for HTML. Okay, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग की तरह लिखा, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर HTML. Just fix the spelling from here. Okay, and I will save this. Let me save this. For saving the file, Control S. Fine. अब I need to run the file to get the output. कैसे कर सकते हैं? दो ऑप्शंस हैं, या तो फोल्डर ओपन करो, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हैं आप, और आपको आसान तरीका भी बता दूंगा, सो डोंट वरी. अब मैंने इसको यहाँ पे सेव किया था, आई थिंक लोकल डिस्क डी. तो यू कैन सी दिस UI बैच 26. मैं ओपन करूंगा. अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे वेब में ओपन करने का ऑप्शंस दिखा रहे हैं. अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, I just need to use any one of the browsers for opening the HTML file. Let's use Google Chrome. Okay, so now can you see that? Welcome to the introduction session for HTML. And here you will find the title name HTML. हमने इसी के बारे में बात की. वो समझा कैसे? DOM ट्री. उसने उसको पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे तोड़ दिया. वो देखा ओके हेड वाला पार्ट है, एज एन इन्फॉर्मेशन में डालेंगे. उसने देखा बॉडी वाला पार्ट है, उसको डिस्प्ले में डालेंगे. टिल हियर आई होप इट्स वेरी क्लियर कि वो किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, और यही बात हम लोगों ने कल देखी भी थी. अब क्विकली चलेंगे और यहाँ पे बॉयलर प्लेट पे डिस्कशन कंप्लीट कर लेता हूँ. अब ये जो पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट यहाँ पे देख रहे हैं, लेट मी क्लोज द कोपायलट. राइट नाउ वी डोंट नीड कोपायलट हियर. चलिए, नाउ हियर if you can see very closely, it's doc type HTML. But what does this doc type HTML means? What does this HTML line en means? क्या मतलब है इसका? ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. डॉक टाइप HTML. नाउ इसका काम है, दिस हेल्प्स यू. मैं यहाँ पे आपको जो भी नोट्स दे रहा हूँ वो यहाँ पे इस तरीके से आपको पुट अप करते जाऊंगा. ठीक, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इट स्पेसिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट टाइप इज HTML. सो ये जो डॉक टाइप HTML अब आप वहां पे देख रहे हैं, इट बेसिकली स्पेसिफाइज दैट द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ द कंप्लीट फाइल इज HTML. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन हियर. नाउ कमिंग टू द लाइन नंबर 2 हियर, HTML. Now this is an HTML type. If you can see very closely, this is the opening of the main HTML. That means the root element. कल जब मैं आपके सामने वो ट्री बना रहा था HTML का, तो जो मेन नोड रहता है, सबसे मेन नोड जहां से पूरा ट्री स्टार्ट होता है, it was what? It was HTML. Let me just see if I have the, yeah. Can you see this? Let me share the screen. I will be stopping the screen share from here. Okay, and I'm sharing the screen from my iPad. Okay, now I'm bringing every one of you to this DOM tree. Remember, document object model. We had the doc over here. Just 1 minute, students. Yeah. So if you remember, we had this document here. Remember, and this HTML over here was the start of the complete section. So this HTML is termed as root element. Okay, so this is termed as root element. Okay, उसी तरीके से जैसे हमने जब ऊपर में बात की थी, so we had specified that it is one is the root node, second one is parent node, third one is the child node, and fourth one is the sub child node. In the same way, here the HTML represents the root element. root element. अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, element. अगर मैं बॉडी के बारे में बोलूं, so this is what
parent element. अगर मैं ये h1p diff के लिए बोलूं तो these are what? These are child elements. In the same way, अगर मैं ये hello के लिए बोलूं so this is what? This is sub child element. Let me do the same for the head tag as well. Head is what? Head is the parent element. What is meta, script, link, title, and everything? These are the child elements. Okay. And what is this? This is sub child element. So it follows the same structure that you have inside trees in DSA. So that's the reason why I was compelled to talk about trees in DSA. Fine. I hope it's making sense to everyone over here. Now I will be quickly taking back you to the VS Studio code, and we have the correct understanding from there. Okay. Let me stop the screen here if possible. Okay. I अब हम वापस चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है? आइए। ये जो HTML है, ये आप समझ चुके हैं कि ये क्या है हमारे लिए? रूट एलिमेंट. We just mentioned that thing here. Students, I will request every one of you to add the notes in the same way I am adding here. And I will be mentioning root element. अब आप बोलेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स को HTML पता होगा कि सर ये तो टैग्स हैं, तो आप इसको बार बार एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? HTML is a tag, right? Meta is a tag, title is a tag, H1 is a tag, div is a tag, p tag is a tag. So if these are tags, then why am I continuously and repetitively using this word element? अगर मैं आपको यहाँ पीपीटी पे भी लेके चलूंगा, ठीक है? Let me just take you to the PPT once. Okay. So every tag in the HTML script must have a closing tag like HTML, p tag, everything. So यहाँ पे तो word use हो रहा tag, ठीक है? हमने जब बैक सेक्शन पे भी देखा था, सो यहाँ पे टैग्स मेंशन है, यहाँ पे टैग्स मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. अब यही है वो डॉम ट्री, जो भी मैं डॉम ट्री के बारे में आपको मैंने अभी लिख के दिखाया था, वो सेम डॉम ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पीपीटी. कैन यू सी दैट डॉक्यूमेंट रूट HTML? From that HTML we have two sections coming up, head and body. Excuse me for this was HTML written by mistake. This is head and this is body. ठीक है? और ये सेम चीज मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि you have the boilerplate. With the help of DOM tree, it gets displayed on your web page. And we have seen that happening right now. HTML head, body, and how the components and sections are getting breakdown from the same given HTML file. You can see that is getting explained in the PPT itself. Okay. And I have given one explanation, like let's say you want to build a house. Before you start pouring concrete or nailing planks, you need a blueprint, right? A drawing like draws the walls so the doors or where the windows should be. So HTML code is exactly like that blueprint of a website. तो आसान तरीके से मैं आपको अगर बोलूं तो एक वेबसाइट का जो ब्लूप्रिंट होता है that is HTML. So you can go through the PPT and have a better explanation. मैं इसको explain करते नहीं बैठूंगा. So what does HTML actually do? So HTML is like the skeleton or the blueprint of a website. इसको ध्यान दीजिएगा. It is the skeleton and it is a heading like a big screen, big sign on a building, like a paragraph of a text, like an image, link to another page, the list of items, everything is being explained here. You can use any text editor to write an HTML code. The files must be saved using the extension .html or .html. You will be using .html. That's it. Notepad, Notepad Plus, Visual Studio, Eclipse, and there are various options. You can go with anti-gravity, you can go with cursor, you can go with windsurf. So there are n number of possibilities that you can opt for. Writing HTML codes. See,
एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन, और अब इसको मैं लेके चलूंगा एज एन एक्सप्लेनेशन पार्ट। जैसे डॉक्टर पे एचटीएमएल के लिए मैंने भी जस्ट आपके पास लिखा था दैट इट इज द डिक्लेरेशन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज इन HTML5। अच्छा, ये भी मुझे अच्छा अभी याद आया आप लोगों को पीपीटी दिखाते दिखाते, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने एचटीएमएल कर रखा है, लाइक आई एम होपिंग कि कुछ स्टूडेंट्स ने एचटीएमएल कर रखा है, सो एनीवन हु कैन इन द चैट विंडो गिव मी एन आंसर, जिन्होंने कर रखा है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन बट जिन्होंने एचटीएमएल पढ़ रखा है, what is the syntactical or the boilerplate difference between HTML and HTML5? If anyone knows the answer, please put that in the chat window. Till that time, I'm writing the explanation for this. Now, HTML Langian means what? The language used for this particular document HTML file is English. So I will be mentioning that part as well here. So I will say that the language of the file is English. Makes sense, right? Now this is what? Head element means opening of the head, or I will say store information। ये बात पे ध्यान रखिएगा, हेड का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, बॉडी का काम होता है डिस्प्ले करना। ठीक, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल सेक्शन दिखेंगे, जैसे मेटा हो गया, टाइटल हो गया। आप यहाँ पे लिंक यूज कर सकते हैं फॉर एडिंग CSS, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं फॉर एडिंग जावा स्क्रिप्ट। तो मेटा पे हम क्या करेंगे, मेटा कैरसेट UTF-8। नाउ व्हाट इज दिस कैरसेट UTF-8? सारे कैरेक्टर्स एस की वैल्यूज, यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं एस की वैल्यूज। अगर कोई स्टूडेंट्स को नहीं पता एस की वैल्यूज क्या होता है, तो मैं उसे डायरेक्टली अब गूगल पे लेके चलूंगा एंड आई विल शो यू व्हाट एन एस की वैल्यू एक्चुअली मींस। सो आई विल सिंपली पुट एस की and I will take you to the images directly. देखिए, ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने एस की वैल्यू के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। एस की टेबल, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कभी प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, तो आप लोगों ने एक बार जरूर इसके बारे में सुना होगा, जिसको बोलते हैं एस की वैल्यूज। अब एस की का मतलब होता क्या है? American Standard Code for Information Interchange. Yes, correctly put up by the students here. American Standard Code for Information Interchange. मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ट्राइंग टू जूम दिस फॉर, ये नहीं करने देगा। It is not just A, B and small a, small z, capital A, capital Z. It's about all the characters. आप जितने भी characters use करते हैं, आपके कीबोर्ड में जितने भी characters हैं, all the characters in the keyboard can be defined using the ASCII table. Okay. इसको वेब स्टैंडर्ड्स नंबर्स बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे खाली ओपन तो करने दे मुझे, ये ओपन भी तो नहीं करने दे रहा है भाई, जूम हो जा प्लीज, थैंक यू। But I'm not able to do it in a proper way. It means control plus, control plus, control plus. स्टूडेंट्स आप लोग भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आप लोग को भी दिखेगा। डोंट, आई एम नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली हियर। Actually, I'm not using my own laptop right now. I'm not using the own laptop, so that is the reason why I'm facing this issue. You will have to bear with that for at least a week. Once I'm back with my Mac device,
I will be taking your sessions back on my laptop. Right now, I don't have my system, so I'm using this Windows laptop. So please excuse me for that. ये नहीं करने देगा, ये दिखा, हाँ चलो फाइनली दिखाने दिया, कहीं तो दिखाने दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक लड़के ने मैसेज किया था 65, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे एंड यू फाइंड 65, दिस रिप्रेजेंट्स कैपिटल ए, ठीक है। ऑन 65 to 90, इफ यू कैन सी हियर 90, it represents capital A to capital Z. इसी तरीके से स्मॉल ए के न्यूमेरिक वैल्यूज देखने होंगे, तो you will directly come here to this 97. Can you see that 97? So this is now small a. Now from small a to small z, that is 122, you can see here. ठीक है। और उसके अलावा जितने भी आप कैरेक्टर्स यहाँ पे जानते हैं, हर तरीके के कैरेक्टर्स, all the characters are being displayed that you have on your keyboard can be used or can be displayed using this ASCII value. What is ASCII value? American Standard Code for Information Interchange. अब जब हम HTML के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ये जो वर्ड देख रहे हो, CharSet UTF-8. Now what does this mean? ये हमें अब बताया जा रहा है इस पूरे HTML फाइल के लिए कि यहाँ पे आप सारे तरीके के कैरेक्टर्स जो भी आपके कीबोर्ड में है आप यूज कर सकते हैं. That is what being meant when we say CharSet UTF-8. Okay, so I hope this is very clear now. So I can put that thing here and mention ASCII. Okay, and this makes sense now. Everyone has understood what is ASCII values. It is some numeric or the numeric values that you have for all your characters in your keyboard. Fine. So this is what we mean by CharSet UTF-8. Now, if you focus on this meta here, now what is meta? Meta is a self-closing tag. मेटा का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. मतलब अगर हेड का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, बात को समझिएगा, अगर हेड का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, तो हेड को कोई तो होगा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा. करेक्ट, राइट? अगर हेड का काम इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो कोई तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला भी चाहिए होगा. तो वो मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन मेटा प्रोवाइड करता है. मेटा का इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे, दो देयर इज अ टर्म नोन एज एसईओ. एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब लेट्स से आप कोई वेबसाइट को जाके जब गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो आपका वेबसाइट टॉप सर्च रिजल्ट्स में दिखने चाहिए. नाउ ऑल दिस मैनिपुलेशंस आर डन यूजिंग दिस मेटा. तो ये हर कंपनी करती है, अपने मेटा टैग्स को रिफिल्टर करती हैं, एलिमेंट्स को पुटअप करती हैं, सो दैट रिजल्ट्स जब सर्च किए जाए तो वो टॉप पे आए. एग्जांपल के लिए अगर आप ये वेबसाइट को देखोगे, डी कोड क्राफ्टर्स, जो यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने इसके साथ भी वो मेटा मैनिपुलेशंस किए हैं कि जब सर्च किए जाए तो वो टॉप पे दिखे. See this, if I go and search for decode crafters, and with the same name you can find my YouTube channel as well, guys. If you want to go through my YouTube channel, if you want to. Now, if you click on this, अब ये वेबसाइट खुला, तो अब ये सर्च रिजल्ट्स में मेरे को जो टॉप फिल्टर्स रिजल्ट्स में ये जो आ रहा है मेरे लिए, ठीक है, लाइक माय यूट्यूब चैनल इज कमिंग अप हियर, माय इवेंट्स, माय इंस्टाग्राम पेज. सो दिस थिंग्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय दिस मेटा टैग. आप लोगों को मैंने इसलिए बोला ना कि ये जो बहुत छोटे और बेसिक चीजें होती है ना, ये सबसे पावरफुल चीजें होती हैं. अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, तो इसके बाद रिएक्ट वगैरह जो भी आप यूज करते हैं ना, वो खेल लगेगा आपको. एट स्टार्टिंग फेज आपको उतना डिफिकल्टी नहीं आएगा अगर आपके ये सब बेसिक्स क्लियर है. अगर ये क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत हेडेक बनेगा. आप यूट्यूब से सीखो, आप कहीं से भी सीखो, नॉट जस्ट फ्रॉम दीपक मिश्रा, एनी ट्रेनर यू टेक. If your fundamentals are not clear, you are going to face issue while learning and understanding any technology or any new technology. Even if it goes for artificial intelligence or prompt engineering, I'm making that thing very clear. Even for artificial intelligence or LLM means the large language models that are used for agent building. Even for learning LLMs, you need to have some basics clear. For machine learning, what is machine learning? What is supervised and unsupervised modeling? Everything. So I'm not going to into that part. That is a completely different thing. But what I'm trying to say is you will have to focus on the basics first before jumping into the technologies. Right? There is no shortcut to hard work. I've told you. I've told you this line yesterday. Okay. Now coming to the line number 7, meta name viewport. Now what is this name viewport? This means आप किस पोर्ट पे इस HTML फाइल को ओपन कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए
अगर मैं ये वेबसाइट लेता हूँ, दिस वन, ओके, अब ये जो वेबसाइट है अब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं फोन पे भी तो ओपन कर सकता हूँ, मैं इसको टैबलेट पे, आईपैड पे ओपन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको अपने लैपटॉप पे ओपन कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको अपने बड़े से टीवी स्क्रीन साइज पे ओपन कर सकता हूँ। तो नेम व्यू पोर्ट मीन्स नथिंग बट द पोर्ट ऑन विच द HTML फाइल विल बी ओपन। Again, I am repeating myself. Name view port means nothing but the port on which your HTML file will be opened up for you. Okay, so name viewport. Now, what is this? Content width equals device width and having an initial scale of 1. Initial scale को चलो अभी मैं हटा देता हूँ. First, we will talk about this. Content width equals device width. जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं ना, लेट से आप कोई टैबलेट परचेज कर रहे हैं, आप कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं, आप कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, आप कोई टेलीविजन स्क्रीन परचेज कर रहे हैं, सो द सेलर्स दे टेल यू दैट सर, ये जो मोबाइल का स्क्रीन साइज है ना, इसका साइज है 6 इंचेस। लैपटॉप लेके आएंगे, वो बोलेंगे सर ये 13 इंचेस का है, ये 17 इंचेस का है, ये 7 इंचेस का है, ये 10 इंचेस का है, ये स्क्रीन 32 इंचेस का है, ये स्क्रीन 55 इंचेस का है। नाउ व्हाट इज दैट इंचेस ओवर देयर? इट इज द विड्थ ऑफ योर डिवाइस। जो डिवाइस आप परचेज करने गए हैं उसका विड्थ बता रहा है। अब विड्थ कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं? दे टेक द डायगोनल विड्थ। इस तरीके से डायगोनल विड्थ लिया जाता है, यहां से वो लेंथ एंड ब्रेथ नहीं पकड़ते हैं, वो इस तरीके से डायगोनल विड्थ कैलकुलेट करते हैं एंड देन दे हेल्प यू आइडेंटिफाइंग द विड्थ ऑफ द कंप्लीट डिवाइस। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेम व्यू पोर्ट। और यहाँ पे हम लाइन नंबर 7 पे ये भी बता रहे हैं कि जो भी हमारे HTML के कंटेंट्स होंगे या जो भी हम वेब पेज अभी हम बनाएंगे यहाँ पे चल के, उसका कंटेंट डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, जो भी कंटेंट हम इस HTML फाइल पे लिखेंगे उसका विड्थ उस पर्टिकुलर डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब मैंने अभी लैपटॉप पे इस वेबसाइट को ओपन किया, डी कोड क्राफ्टर्स, तो इसका जो कंटेंट है, कंटेंट मीन्स क्या, ये जो पूरा आप यहां से देख रहे हैं वो नीचे तक जो भी आपको डिस्प्ले को दिख रहा है, डिस्प्ले में दिख रहा है, दिस इज द कंटेंट पार्ट। अब जो भी कंटेंट पार्ट है वो मेरे डिवाइस के अकॉर्डिंगली खुलना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करना चाहोगे ना, तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं उस तरीके से। आप इंस्पेक्ट करिए, यू विल बी हैविंग दिस ऑप्शन हियर, क्लिक ऑन इट एंड यू विल सी डायमेंशंस रिस्पॉन्सिवनेस। सो आप लोग जब कभी इंटरव्यू बैठोगे फ्रंट एंड के लिए, तो वहां पे बोलता है responsive designs. So responsive designs can be understood by using this. अब लेट से मैं सेट करता हूँ यहाँ से iPhone SE या iPhone 10R मैं सेट कर लेता हूँ, ओके, एंड आई क्लिक ऑन दिस। तो अब देखिए ये जो कंटेंट है, अब इसमें ऑब्वियस बात है CSS का कमाल है, लेकिन CSS से पहले उसमें जो कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं, this name, this image, everything, so this structure is or the blueprint of this website is still the HTML। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूं और इसको मैं बोलूं कि मैं iPad Air पे ओपन कर रहा हूं या iPad Pro में ओपन कर रहा हूं, मतलब एक टैबलेट डिवाइस में ओपन कर रहा हूं, तो अब देखिए इसका CSS किस तरीके से आएगा। ठीक है, और उसी को जब मैं एक लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स से नेस्ट हब, तो आप देखिए उसका डिस्प्ले किस तरीके से आ रहा। सो फॉर डिफरेंट डिवाइसेस द रिस्पॉन्सिवनेस इज डिफरेंट। ऑब्वियसली इसमें CSS का कमाल है, ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो कंटेंट है वो आपके डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सो वी हैव अंडरस्टूड द नेम व्यू पोर्ट, वी हैव अंडरस्टूड कंटेंट विड्थ इक्वल्स डिवाइस विड्थ। अब एक चीज रह गया, इनिशियल स्केल ऑफ 1। अब ये इनिशियल स्केल ऑफ 1 मींस व्हाट? कभी फोन का कैमरा ओपन करके देखिएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका फोन या स्नैपचैट जो भी आप यूज करते हैं, उसका कैमरा का जो स्केल होता है ना वो 1 पे फिक्स होता है। अब जैसे ही उस कैमरे को आप जूम करना स्टार्ट करिएगा ना, इट विल स्टार्ट टेकिंग साइज एज 1.25, 1.5, 1.75, वो जूम होने लगेगा। और जैसे आप उसको जूम आउट कीजिएगा, इट बिकम्स 0.8, 0.5, 0.25, जब वो जूम आउट करना स्टार्ट करते हैं आप, तो मतलब कैमरे का स्केल 1, जूम इन जूम आउट। अब इसको यहाँ पे HTML पे क्यों डाला? ये देखिए, ये हो गया एक वेबसाइट। अब अगर जूम इन जूम आउट वाली फंक्शनैलिटी हमको यहाँ पे हो, तो आप देखिए आप उसकी स्केल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
नाउ से दिस, ये क्या हो रहा है, हम उसकी स्केल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा, देखिए अब हम उस स्केल को घटा रहे हैं, अब हम जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, जूम इन जूम आउट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब मेरा वेबसाइट ओपन होता है तो इट इज गेटिंग ओपनड विद द स्केल ऑफ 1, सो दैट इज बीइंग स्पेसिफाइड व्हेन वी से इनिशियल स्केल ऑफ 1, ठीक है। और इसको, ये पूरे को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मींस व्हाट, प्रॉपर्टीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये हम लोग हर एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे। आप फॉर्म्स, डिव टैग, पी टैग, H1 टैग से लेकर जितने भी टैग्स आप लोग पढ़ेंगे, हर एक में ये एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मींस व्हाट, एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। मतलब लेट्स से एग्जांपल के लिए ये H1 है और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है वेलकम टू द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर HTML। मुझे इस पे CSS डालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल, and let's say for style I will say color. What is the color that I can go for? I will say color, what, red, ठीक है। and let me just save this। अब अगर आप वेब पेज पे जाइएगा ना, मैंने बंद कर दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। and I just need to refresh the page once। see, welcome to the introduction session for HTML। Can you see the same red color is getting applied? So what is attributes? Attributes means the additional information about a particular file या पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्टाइल कलर रेड, तो स्टाइल क्या हो गया, की, कलर रेड क्या हो गया, प्रॉपर्टी। इन द सेम वे नेम व्यू पोर्ट, तो नेम व्यू पोर्ट ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे लिए, वन सिंगल एट्रीब्यूट वेयर नेम इज द की, व्यू पोर्ट इज द वैल्यू। यहाँ पे आइए, कंटेंट विड्थ इक्वल्स डिवाइस विड्थ विथ इनिशियल स्केल ऑफ 1। नाउ this complete or on a whole is an attribute where content is the key and width equals device width with initial scale of 1 is the value। same thing here, lang en, अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ हमारे लिए, एक एट्रीब्यूट वेयर lang is the key, en is the value। यहां पे आइए, char set utf8, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एट्रीब्यूट वेयर char set is the key, utf8 is the value। I hope the concept of attributes is very clear। Let me put those attributes, tags and elements information as notes here as well। So मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर दूंगा tags, elements and attributes। okay, this is going to be for the tags part। now what are tags? पहले मैं attributes के बारे में मेंशन कर दूं। ये हो गया tags, फिर आ जाएंगे elements and then we have what, the attributes। ठीक है। now what is attributes? देखिए मैं बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं दूंगा, बस आसान भाषा में समझिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। फाइन। सो एट्रीब्यूट्स मींस व्हाट, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ एलिमेंट। मैं बार बार एलिमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एलिमेंट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स मोस्टली, मैं इसको थोड़ा सा ना बेटर वे में इंडेंटेशन कर दूं। attributes are mostly, not all attributes but most of the attributes, okay। so attributes are mostly represented in key so attributes are mostly represented in key value pairs। ये की वैल्यू पेयर्स अभी आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे देखिए lang en, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एट्रीब्यूट वेयर lang इज द की, en इज द वैल्यू। char set utf8 पूरा का पूरा क्या हो रहा है हमारे लिए, एट्रीब्यूट वेयर char set इज द की, utf8 इज द वैल्यू। ये नेम व्यू पोर्ट पूरा का पूरा क्या है हमारे लिए, एक एट्रीब्यूट वेयर नेम इज द की, व्यू पोर्ट इज द वैल्यू।
ठीक है, आई होप ये चीजें सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। Attributes are mostly represented in key value pairs. Now we will be talking about tags and elements. Now what is the difference? ये पूछते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो एक तरीके के ना रावण की तरह ब्रह्मास्त्र की तरह चलता है इंटरव्यूअर का। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा है ना कि चीज एक ही है लेकिन फिर भी अंतर है, फिर भी डिफरेंस है। और दूसरी बात ये है, ये ऐसा चीज है ना जिसको जानते हुए भी समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत गड़बड़ हुआ है। और अगर कोई इंटरव्यूअर का मूड खराब होगा ना, मतलब मान के चलो कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस इन अ फन नोट, ठीक है, कि सुबह सुबह मान के चलो कि जो इंटरव्यू लेने आ रहा है, ठीक है, उसका उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया बैठा है, ठीक है, उसका मूड ठीक नहीं है, और उसको चाहिए कि तुम अभी उसको तुम्हारा शक्ल नहीं पसंद आया, और उसको चाहिए कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होना चाहिए, और वो तुमसे पहले ही एचटीएमएल से स्टार्ट करेगा। आप एचटीएमएल पढ़ के जाएंगे तो आप क्या पढ़ के जाएंगे, टैग्स, उसके एलिमेंट्स वगैरह पढ़ के जाएंगे, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो आपको सीधा बैठाएगा पूछने के लिए कि टैग्स और एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप वहां पे करते रहेंगे, भाई टैग्स तो आप बता सकते हैं, पी टैग बोल सकते हैं, डिफ टैग बोल सकते हैं, एचटीएमएल बोल सकते हैं, अब एलिमेंट क्या समझाएंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था डॉम, तो मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा था एलिमेंट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, समझिए। व्हेन वी टॉक अबाउट टैग्स, एनीथिंग enclosed between opening and closing angular brackets are known as tags। अब देखो, ध्यान से देखना सबके सब, प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। ये देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं, डॉक टाइप एचटीएमएल का भी एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, सो दिस इज अ टैग। एचटीएमएल का अपना एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, ठीक। उसी तरह हेड में भी आप देखोगे, इसका अपना एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है और इसका अपना खुद का एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है, करेक्ट। मेटा का आप देखेंगे, उसका अपना एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट है और उसका खुद का अपना एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट है। चलिए यहाँ पे आइए, फिर से ओपनिंग क्लोजिंग। तो टैग्स मीन्स व्हाट, एनीथिंग एनक्लोज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स आर नोन एज टैग्स। यही होता है डेफिनेशन टैग्स का। तो एचटीएमएल भी टैग है, हेड भी टैग है, डिव भी टैग है, पी भी टैग है, मतलब जितना भी एचटीएमएल में सबका सब टैग है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स मींस व्हाट, एलिमेंट्स का डेफिनेशन जाता है दैट एनीथिंग enclosed anything enclosed between opening and closing tags, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, आर नोन एज एलिमेंट्स। डेफिनेशन में डिफरेंस है ना, इसका अंडरस्टैंडिंग में भी देखिएगा आपको डिफरेंस समझ में आएगा। डिफरेंस ऐसे है, देखो ध्यान से, अगर मैं एचटीएमएल को पूरा बंद करूं, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया हमारे लिए, तो ये हो गया रूट एलिमेंट। अब इस एक एलिमेंट के अंदर में आप पाएंगे दो एलिमेंट्स हैं, हेड और बॉडी। डेफिनेशन क्या कहता है एलिमेंट्स का, एनीथिंग एनक्लोज, एनीथिंग मतलब एनीथिंग, एनीथिंग एनक्लोज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर नोन एज एलिमेंट्स। तो अब आप देखोगे, ये पूरा का पूरा बॉडी क्या हो गया, अब पूरा का पूरा हेड क्या हो गया, ये पूरा का ये दोनों के दोनों सेक्शंस एचटीएमएल के अंदर है, तो हेड और बॉडी एचटीएमएल के लिए क्या हो गया, एलिमेंट। अब उसी तरीके से मैं बॉडी को ओपन करूंगा, तो बॉडी के अंदर लेट्स से मेरे पास H1 है, पी टैग है, डिफ टैग है, तो जितने भी एलिमेंट्स हम इसके अंदर पुटअप करेंगे वो सारे के सारे बॉडी के लिए क्या हो गए, एलिमेंट्स। उसी तरह अगर मैं हेड को ओपन करता हूँ, तो हेड के अंदर आप देख सकते हैं मेटा है, टाइटल है, तो जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हेड के लिए क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स।
अब उसी तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइटल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइटल के बीच में आप देखेंगे HTML लिखा हुआ है, दिख रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग टाइटल के बीच में HTML लिखा हुआ, तो ये HTML इस टाइटल के लिए क्या हो गया, एलिमेंट। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप आएंगे, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन फॉर द HTML और H1 को आप नीचे लेके आएंगे, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ H1 के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर HTML। तो वेलकम टू द इंट्रोडक्शन सेशन फॉर HTML H1 के लिए क्या हो गया, एलिमेंट। तो अब आपको जो डॉमट्री मैंने कल पढ़ाया था, अब मैं आप लोगों को एक बार ये लेवल दिखा देता हूँ। अब जो मैंने आपको वो डॉमट्रिकल पढ़ाया था, अब ये ट्री स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, क्यों मैंने इसको एलिमेंट मेंशन किया, क्यों मैंने इसको मेंशन किया दैट दिस इज पेरेंट एलिमेंट, दिस इज चाइल्ड एलिमेंट, दिस इज सब चाइल्ड एलिमेंट। इसका जो मेंशन किया मैंने, इस मेंशनिंग का जो पर्पस था वो आप लोगों को अब समझ में आया होगा, करेक्ट। Just 1 minute, let me see if it's getting displayed or not. It's getting displayed. So now I hope this part is clear. What is this parent element? What is this child element? So basically, in easier word, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो भी लिख दिए, आप लिख दो HTML, तो ये हो गया टैग। आप इसके अंदर पी टैग लिख दिए ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये हो गया टैग। आप ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर div लिख दो, तो ये हो गया टैग, ठीक है। तो टैग्स आर डिफरेंट, बट जब HTML की बात आती है तो उसके अंदर जो भी सेक्शंस आ जाते हैं वो उसका एलिमेंट बन जाता है। सो एनीथिंग इनक्लोज बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर एलिमेंट्स। Perfect, and we have done the discussion. Now students, if you have understood all the concept that we have discussed till now, type 1 in the chat window. If not, you can type 0. Everyone please respond. Sir, if I made my web app, how can I host it publicly? You can use SaaS platforms, Anushka. First, you need to put up everything on your GitHub repository, and from there, you will be able to make it live. Guys, please respond by typing 1 in the chat window if it's possible for you. That will help me in identifying not just reactions, because that won't help me in understanding who has not understood. Okay, so if you have understood, type 1. If not, you can type 0. Okay. Okay, guys, just give me 2 minutes. Okay. Now, students, if anyone has any doubt, any queries or questions, they can ask me before we continue. Guys, if anyone is having any doubt, they can ask me. No doubts? Okay. So, yeah. Okay. So, students, I'm giving 5. Sir, is we will be cover only front end or both back end and front end? So why HTML is not called as programming language? Nitish, see, it is not a programming language. It is a markup language. It is a language that is more important than any other programming language. Understand that, key.
जो भी आप लिखते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू जीरोस एंड वंस, आपका मशीन समझ नहीं सकता। बट मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है, इट्स नॉट ब्रेकिंग इट डाउन, मतलब यहाँ पे कोई सर्वर रन नहीं कर रहा है, आप समझिएगा। ये एक प्योर फंडामेंटल डीएसए पे चल रहा है कि जो आपने लिखा उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर पे तोड़ के उसको वो डिस्प्ले कर रहा है। तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट, कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। ये चीज ही एकदम डिफरेंट हो जाता है। प्लीज रिपीट info about viewport. Viewport means the port on which you are viewing that particular website. जो मैंने आपको बताया कि let's say you are opening that on a mobile device, or you are opening that on a tablet or on a laptop or on a big screen. So the port on which you're opening that section is the viewport. So here is a tag, and all under that tag includes meta. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Sir, head is a tag, and all under that tag including meta and all are elements. हेड अब टैग नहीं रहा। अगर आप सिर्फ हेड आपसे पूछा जाएगा तो टैग और एलिमेंट्स आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हेड अपने आप में भी टैग नहीं है, क्यों नहीं है? हेड और बॉडी किसके अंदर पुटअप किया जाता है? एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो हेड और बॉडी को भी हम टैग बोल देंगे तो गलत हो जाता है, क्योंकि वो हेड एंड बॉडी दोनों के दोनों एचटीएमएल ओपनिंग एंड क्लोजिंग अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हेड इंडिविजुअली एक टैग आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप पूरे एचटीएमएल फाइल के रेफरेंस से बोलते हैं तो वहां पे हेड इंक्लूडिंग बॉडी ये दोनों भी एलिमेंट्स ही होते हैं। चीज वही है, ये जुड़वे भाई हैं, बस बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। और ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप जावास्क्रिप्ट करिएगा ना, तो जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है एक फंक्शन दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसी तरीके से आप सीएसएस करिएगा ना, तो सीएसएस में भी आता है एलिमेंट सेलेक्टर। देयर इज नो सेलेक्टर्स लाइक टैग सेलेक्टर सीएसएस में भी। तो दिस टर्म एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and one needs to have the correct understanding between the tags and elements. Okay, okay sir, got it. Yeah, fine. So why HTML is not we have done that. Please repeat info. Sir, is we will be covering only front end or both back end and front end? Jinesh, we are just covering up UI, right? Right now we are just focusing on the UI part. Okay, so okay, so now we will be continuing with the section. Students, just 1 minute. If anyone wants to put this up on your system, just write this on your systems once and get the output, at least for once, so that there is no one left out who will say that, sir, I am facing so and so issue in setting up, or I'm not getting the output XYZ anything. तो जो भी है एक बार इसको एक बार लिख के देखिए, shift 1 enter, you will have the complete boilerplate, and just take this down as notes. No, Nitish. No, Nitish, we shouldn't write code from AI. Yeah, it's okay for writing codes with AI once you are experienced. At least you should be having 1 to 2 years of experience, at least 1 year of experience. I can share. Abhishek, if you're getting the option to share your screen, you can share your screen. I don't have any issue.
तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने ये लिख लिया है? अगर लोग हैं जिनका लिखना बाकी है तो मुझे बता सकते हैं। प्लीज डोंट टेक दिस कि अरे सर क्या ही है, छोड़ देते हैं, क्या लिखने का दरकार है। डोंट टेक इट दैट वे प्लीज। आई एम this many efforts for you guys, so please don't take it like sir क्या जरूरत है. So if you are writing it, please just let me know that you guys are writing it down actually on your systems and not just attending the sessions like a movie or a theater. And I want every one of you to do it along with me. Only then it's going to help you in any way, or else this is not going to help you in any way possible. Okay. Once you are done, just let me know, in everyone in the chat window. गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं ये नेम व्यू पोर्ट और कंटेंट का भी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। मुझे कुछ क्वेश्चन अभी दिखे हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं उन पे एक बात करूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। आइए, आप लोगों की क्वेरीज देख लिए जाए। सर, हाउ टू राइट अ कमेंट ऑन द एचटीएमएल लाइक डीईएफ of tag and all? See, if you want to write a comment in HTML, press shift and 1. ठीक है, सबसे पहले तो आप एक एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एज एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे टाइटल से ऊपर आपके पास लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, कैसे करते हैं। शिफ्ट, तो ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। देखिए, दिखाई पड़ रहा है, आ रहा है, ठीक है। नाउ शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 करते ही आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हेलो, हेलो, प्रणाम मामा। मामा बस हमको बात। ओके,
तो अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था शिफ्ट, उसके बाद 1, तो ये एक्सक्लेमेशन आ गया, देन हाइफन, दैट्स इट। फिर से देखिए, पूरा आप लोगों को सेक्शन दिखा देता हूँ। शिफ्ट एंगुलर आया, देन शिफ्ट 1 हाइफन हाइफन, एंड यू हैव द कंप्लीट सेक्शन रेडी फॉर द कमेंट पार्ट। अब आराम से लिखिए, या फिर अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मली कुछ भी लिख दीजिए। लेट्स से आप यहाँ पे लिख दीजिए आई लव HTML, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे आई लव HTML, ठीक है। अब अगर मुझे कमेंट करने में दिक्कतें आती हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये पूरे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ये पूरा सिलेक्ट करूंगा, और ये दूसरा तरीका हुआ, मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, देखिए ऑटोमेटिकली कमेंट हो गया। और अब अगर इसको मुझे कमेंट से बाहर निकालना होगा, मैं बस यहाँ पे जाऊंगा, सी दैट, मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। देखिए मैं सिलेक्ट नहीं भी करूंगा ना, मैंने बस कर्सर वहां पे होल्ड कर रखा है, मतलब आप गए, आपने कर्सर रखा एंड सिंपली प्ले विद इट, दैट्स इट। So it becomes easier for you as well. So whatever way that is suiting you, you can opt that way. I hope I have answered your question. Who had asked that question? It was Shelly Chatterjee. Control, no, yeah, control question mark control slash जो भी बोल दीजिए, yes. Sir, if you write comment between opening and closing tags, then comment will also, no. Comments are never a part of anything. It goes for markup language, it goes for programming languages. Comments are like हमारे यहाँ ना एक बात चलती है, इन बिहार साइड देयर इज अ सेइंग, दूध भात, so that comment is like something like a दूध भात. In Maharashtra it is said like कच्चा नींबू. Okay, so you can take it that way, right? So it's irrelevant. That means its existence is not considered if it goes for programming language or it goes for a markup language. But this comments can be effectively used for developers in ट्राइंग इन अंडरस्टैंडिंग कि हमने कौन सा पार्ट या कौन सा सेक्शन कहाँ बनाया है। जब हम HTML के थ्रू प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वहां पे हम इसे सेक्शन से कर सकते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम जमशेदपुर नीतीश, दैट इज माय होम टाउन। जमशेदपुर आप लोगों ने सुना होगा, गांव आरा पड़ता है, आरा पटना, होम टाउन जमशेदपुर। चलिए, नाउ इट इज नॉट, या सो दैट इज नॉट द राइट टाइम फॉर द पर्सनल रिलेशन कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। यू हैव माय ईमेल आईडी, कांटेक्ट मी थ्रू द ईमेल आईडी फर्स्ट, फाइन। चलिए, so guys, can we continue now? वेलकम टू द बिहार सर, ये हमारा तरीका नहीं है, आइए ना हमारा बिहार में, वो हो गया तरीका। चलिए आइए, बढ़ते हैं आगे। Okay, now we have completed the discussions for this. Let me 1 minute. देखिए हमने कल से जो भी डिस्कशंस कंप्लीट किए, हमने क्या क्या डिस्कशंस कंप्लीट करी है। पहला डिस्कशन जो हमने कंप्लीट किया था, दैट वाज डॉम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉम। हमने डॉम के बाद जो सेकंड डिस्कशन कंप्लीट किया था, दैट वाज अबाउट ट्रीज, ठीक है। After trees, we understood how our HTML gets broken down in a DOM tree and we get the output as a web-page display. So we understood the blueprint. What is blueprint actually? Right? Today, we installed the code editor. So this is something that we have already covered till now, from yesterday till today. Code editor, then fifth. Along with code editor, we set up the boilerplate for the HTML5. So this boilerplate that you are currently using is the boilerplate for HTML5. We understood what tags, elements, and attributes, and it makes sense for every one of us now, right? So this is something that we have done. We talked about DOM, we talked about trees, we discussed about the blueprint, code editor, boilerplate HTML5, tags, elements, and attributes. If what else we had talked about? और तो कुछ नहीं हुआ, चलिए ठीक है। So we have done it till here. Now we will be proceeding ahead and let's see some HTML elements that we know, or
इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन HTML एलिमेंट्स के साथ काम किया भी हो रखा होगा। चलिए क्विकली उन एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। सो आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयर फ्रॉम हियर एंड प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन हियर। अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, so I will not be mix and matching everything on the same HTML file. In fact, now I will, or I can say I'm more interested in creating a new HTML file. So I'm interested in creating a new HTML file from here. I go and I will say HTML, or I will say intro dot HTML, or I will say HTML1 dot HTML. Let me just use, वापस से एक बार क्विकली कर लेते हैं। Shift 1 एंटर। आई हैव द बॉयलर प्लेट नाउ, राइट। मैं यहाँ पे टाइटल को रीनेम कर देता हूँ विद द नेम ऑफ HTML। ठीक है, इसको बोल दूंगा HTML1। ठीक है, चलिए अब बॉडी पे आएंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हमेशा ये डिफ फ्रेगमेंटेशन का आदत लगा के रखिए। ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है। ये आपको रिएक्ट में भी बहुत बचाएगा और एंगुलर में भी बहुत बचाएगा। ठीक है, क्या है डिफ टैग अगर आपको नहीं पता है, इसे डिवीजन टैग कहते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे जब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ टैग एंड स्पैन टैग। पहले हम बेसिक के टैग्स के बारे में बात करते हैं, डिफ टैग के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बेसिक्स में आप बात कर सकते हैं कि हेडिंग। तो HTML पे हेडिंग के लिए जो टैग्स आते हैं उनमें सबसे पहले आता है हेडिंग टैग्स, और आप टैग्स बोलिए या फिर एलिमेंट बोलिए, जो आपको करेक्ट लगे। हेडिंग एलिमेंट्स, see if I talk from a developer's perspective or an interviewer's perspective, I am not impressed with the word tag, whereas I am more impressed with the word elements. Okay, so heading elements, fine. So heading elements from H1 to H6. So we have basically H1 till H6, we have 6 different heading tags. तो थोड़ा स्क्रीन जूम करके दिखाइए, बहुत छोटा दिख रहा है। वॉइस नॉट क्लियर सर, सर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, अब ठीक है, हाँ चलिए। सो हेडिंग एलिमेंट्स H1 to H6। अब यहाँ पे चलेंगे एंड हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। सो आई विल टेक H1 फर्स्ट। हमने ऊपर देख भी लिया है पहले भी H1 टैग, तो इसको बोल देंगे दैट दिस इज हेडिंग 1। इसको लिखना ना पड़े इसलिए इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ये मेरा टाइम बचाएगा। और इस तरीके से मैं सभी तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। जैसे H2, दिस इज हेडिंग 2। यहाँ पे आ जाएगा H3, दिस इज हेडिंग 3। दिस इज H4, means heading 4। This is H5, heading 5। And this one is H6, heading 6। हुआ H1 हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। अब इसको सिर्फ सेव करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या रहा ना, बार बार हम लोग फाइल थोड़ी ओपन करते बैठेंगे। हमें थोड़ा सा आसान तरीका चाहिए कि मतलब हमको यहाँ पे कहीं ऑप्शन मिले जहां से हम उसको डायरेक्टली रन कर सके। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी मालूम हो, पर जिनको नहीं पता है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको VS कोड पे देखिए आपको एक सेक्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक ऑन दैट और यहाँ पे जाके सर्च करिएगा लाइव सर्वर। ठीक है, यू कैन सी लाइव सर्वर हियर, क्लिक ऑन इंस्टॉल। So this is getting installed.
अब इससे बेनिफिट क्या होगा ना, बार बार मुझे फाइल को डबल क्लिक करके ओपन नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से एक सर्वर चलाऊंगा और ये मेरे को डायरेक्टली उसको वेब पेज पे डिस्प्ले करके दे देगा। सो थिंग्स गेट्स easier when I go through that way. Okay, see, you can see I'm getting one option here with the name of go live, correct? Now if I click on this go live, I will click on allow access. कर दिया भाई, चलिए। सो सी, अब मुझे बार बार फाइल ओपन नहीं करना नहीं पड़ रहा है, एंड आई कैन सी heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. So I'm getting all the 6 different types of heading, and you can also see the title getting displayed here. Okay, so things are getting simpler and easier. And again, I'm hoping that it's very understandable for the students as well who are doing HTML for the first time. Right. Now, after discussing about heading, we can see other tags as well. What are the other tags that we have here? The other tags that we have is paragraph. Okay. Now, paragraph tag are presented. अच्छा, अब एक साथ खिचड़ी बनाने से अच्छा है ना, हम यहाँ स्पेसिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्पेसिंग्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज दिस br. दिस br इज नोन एज ब्रेक टैग। ओके, ब्रेक टैग, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूं, ब्रेक टैग। अरे ये सबको काहे लपेटा में ले लेता है। ठीक है, हाँ, बराबर। अब इसी तरीके से बी आर के बाद आता है एच आर। इसका मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, और इसके बाद मैं एक बार और बी आर टैग यूज कर दूंगा। अब इससे बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि अब अगर आप जाके चेक करोगे ना यहाँ पे, तो एक लाइन आपके पास यहाँ पे अपीयर होके आ गया। तो ये आपको सेग्रीगेशन और डिफरेंशिएशन में मदद कर देता है। ये बहुत बड़ा 30 मार खान वाला चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। बी आर मतलब ब्रेक का ऑप्शन दे देता है ताकि गैप्स हो जाए, और एच आर आपको वो लाइन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पे क्विकली पैराग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे पी टैग के बारे में। अब पी टैग में आप कुछ भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, जैसे आई एम ऑप्टिंग फॉर लॉरम। सो लॉरम के लिए हम क्या लिखेंगे? लॉरम लिख देंगे। अब जितने भी रैंडम नंबर चाहिए, लेट्स से लॉरम 9 लिखता हूँ, एंड आई हिट एंटर, तो मेरे पास देखिएगा 9 कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। एंड इफ आई सेव दिस, आप देखेंगे मेरे पास पैराग्राफ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। अब इट इज वेरी इजी, मतलब ये लॉरम वाला सेक्शन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को आता हो, नहीं आता हो, आई एम नॉट अवेयर। आप लिख दीजिए लॉरम, एंड लेट्स से जस्ट पुट सम नंबर, लेट्स से 21, तो 21 कैरेक्टर्स आपके लिए पुट अप कर देगा। नाउ इफ यू सेव दिस, सी, so it's that easy and simple. It's not that difficult to understand, and it is not very complicated. Again, p tag, I will put lorem, let's say what, 51. Save this. See, so you can see the paragraphs getting displayed for you. So paragraphs can be displayed by using p tag. Okay, let's quickly come back to this. Okay, again I will be using the same structure from here: br tag, hr tag, br tag. ठीक है, and after paragraph we can talk about what? इमेज टैग्स। चलिए इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर आपको किसी वेब पेज पे इमेजेस पुटअप करने होंगे,
आपको दो एट्रीब्यूट्स की नीड पड़ेगी। पहला पड़ेगा SRC एंड द पाथ की वैल्यू पेयर, and this is going to be your attribute. Okay, so attributes SRC path key value pair, and and along with this you need to have another attribute, that is alt tag and some name. Now what I'm trying to say when I'm putting up this way, and also I'm going to specify that image tag is a self closing tag. So img tag or element, anything that you call it, is a self closing tag. Fine. Now let's quickly put up that image from here. I will take img, and you can see it is asking me for two different values, one for the src and another one for the alt tag. ठीक है, अब src पे क्या करना है, आपको जो भी इमेज आपके वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले करके लानी है, लेट्स फॉर सपोज मैं इसको क्लोज करता हूँ फ्रॉम हियर, एंड आई एम क्लोजिंग दिस, आई एम क्लोजिंग दिस, आई एम क्लोजिंग दिस, बंद हो जा, एंड आई एम क्लोजिंग दिस एज वेल। आप लोग ये लिंक्स यहाँ से रेफर कर सकते हैं, मैंने ये लिंक्स ऑलरेडी कल आपको शेयर की है, एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू कांटेक्ट मी, दे कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस नंबर। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ पे आएंगे। ओके, so I've shared you both the details for the contact and everything. Now coming back to this image, और अब हम यहाँ पे इमेज सर्च करते हैं, क्या इमेज डाल सकते हैं, HTML डाल देते हैं, HTML का कोई इमेज निकाल लेते हैं यहाँ से। आई विल क्लिक ऑन इमेजेस, HTML। ठीक है, आई विल से देखिए मैं दोनों तरीका दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, तो मैं इमेज एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आई विल गो बैक टू द विजुअल स्टूडियो कोड, इनसाइड दिस SRC। SRC का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। SRC का मतलब क्या हुआ, SRC मीन्स SRC means SOURC, source of the image। इमेज के सोर्स को बोलते हैं SRC। ठीक है, SRC में हम क्या करेंगे, इमेज का पाथ डाल देंगे, चला गया, एंड देन ऑल टैग। अब ऑल टैग क्या करता है, दिस एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव, मतलब किसी कारण से अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है, तो वो कुछ नाम तो पता चले कि वहाँ था क्या। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट को कभी ओपन करते होंगे और देखते होंगे कि अगर उसका इमेज बराबर तरीके से लोड नहीं हुआ, तो अगर इमेज लोड नहीं होता है तो इन प्लेस ऑफ इमेज वहां पे कुछ अलग अलग आपको दिखाया जाता है। ठीक है, अब ऑल टैग में क्या होता है कि आपको एक रिस्पॉन्स एज एन अल्टरनेटिव आपको दिखाया जाता है कि लेट से अगर किसी कारण से इमेज नहीं हुआ, लेट से अगर आप पिज्जा हट से ऑर्डर कर रहे हैं कोई पिज्जा, लेट से फार्म हाउस, और फार्म हाउस पिज्जा का इमेज लोड नहीं हो पाया, तो आप देखोगे कि अगर वो इमेज लोड नहीं होगा ना किसी कारण से, या नेट स्लो चल रहा होगा XYZ, तो वहां पे उस इमेज का एक ऑल्टरनेटिव नेम आपको दिखाई ही देगा, बारबेक्यू है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ओके यहाँ पे एक इमेज था बारबेक्यू का जो लोड नहीं हुआ। अगर वहां पे कुछ ना लिखा हो ना कोई फोटो है, तो आपको क्या समझेगा कि वहां पे है क्या एक्चुअली में। तो दिस एक्चुअली एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव नेम, कि अगर किसी कारण से आपका इमेज जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, देन दिस एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव। ठीक है, now alt tag here, and then you can say alt what,
HTML. Okay. Now just save this. और अब आप देखोगे यहाँ पे आपका HTML का इमेज आना स्टार्ट हो गया है. कैन यू सी दैट? अब अगर किसी कारण से HTML का इमेज नहीं आता है, एग्जाम्पल अगर मैं ये HTML का लिंक यहाँ से हटा दूं, मैंने ये HTML का इमेज यहाँ से हटा दिया, ठीक है, एंड आई विल सेव दिस. तो अब आप देखोगे वहां पे इमेज नहीं आएगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ दैट उस इमेज की जगह पे उसका नाम आएगा जो हमने वहां पे दे रखा था. अब समझ में आया? ऑल्ट ऑल्ट का काम क्या होता है कि किसी कारण से अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाएगा तो ऑल्ट विल एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव सो दैट यू कैन प्रोवाइड द इमेज फॉर दैट. सी, और ये आप लोगों ने बहुत बार इनकाउंटर किया भी होगा रियल टाइम जब आप वेबसाइट्स के साथ डील करते हैं तो. ठीक है, सो आई विल जस्ट पुट दैट लिंक अगेन. अब अगर आपको इमेज को रिसाइज करना हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूं, मैंने सेव नहीं किया क्या, इमेज डाल तो दिया. अच्छा अच्छा, गड़बड़ समझ में आया मेरे को, गड़बड़. ठीक झाले, हाँ बस हो गया. सी, यू हैव द इमेज. अब अगर मेरे को किसी कारण से इस इमेज को रिसाइज करना हो, एग्जाम्पल मुझे ये इमेज काफी बड़ा लग रहा है और मुझे इस इमेज को कंप्रेस करके थोड़ा सा छोटा में लेके आना है अच्छे तरीके से, कैसे कर सकते हैं? हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे एंड हियर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे width, let's say 200 pixels. Okay, and if you want you can add the height as well. हालांकि ये सारी चीजें CSS से भी फिक्स हो जाती है, so this is not a very big thing. मैं आप लोगों को रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोग CSS के थ्रू ये फिक्सिंग करिएगा. ये पढ़ाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो सी, अब हमने उस इमेज का हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर दिया तो मेरे लिए छोटा होके आ गया ऑलरेडी. तो आई हैव गिवन इट 200 पिक्सेल्स फॉर विड्थ एंड 200 पिक्सेल्स फॉर द हाइट. सो सी, द HTML getting displayed with 200 pixels. Okay, now we have talked about the IMG tag. Now we can proceed and talk about the anchor tag or the link tag. Okay, again I will put up the BR tag, HR tag, BR tag. Okay, and here I will say what links or anchor tags. Okay, links or anchor tags. चलिए, अब एंकर टैग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उस पर बात करते हैं. एंकर टैग के लिए हम एंकर इस तरीके से पुटअप करते हैं जहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एचरेफ क्या करता है कि लेट्स से अगर आप यहाँ पे किसी ऑप्शंस को पुट करते हैं, लेट्स से क्लिक मी. ओके, आई एम पुटिंग वन एंकर हियर विद द नेम ऑफ क्लिक मी. अब जब मैं इसको सेव करता हूं एंड आई रिफ्रेश द पेज हियर, you can see I'm getting one option here with the name of click me. You can find that very closely here. Like, I need to zoom it for every one of you to have a closer view. आजा, हाँ, see this, click me. ठीक, बट अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा अभी मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं, so this is not going to do anything for me. I cannot do anything with this click me. अब उसको सेटअप करने के लिए क्या करेंगे? I will go here and here in place of href मैं click me पे डाल सकता हूँ कि let's say अगर आप click me मैं क्लिक कर रहा हूँ, so what, take me to the website of Decode Crafters. Screen is not visible. Students, is it like the screen is not visible to everyone? I can see the screen is visible. Okay. ओके ओके ओके, ठीक है 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 ठीक है, एकदम सब जोश में आ जाता है, एकदम सेना एकदम सेना बन के टूट पड़ता है. हाँ, एक तो बोला तो सब पहुंच जाएंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ 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 हाँ, मालूम था visible है. हाँ, ये सब बहुत ठीक है. बोल लो तुम बोलेंगे तो समझ में लगेगा.
बच्चे ये सब का सब। चलिए आइए, अब यहाँ पे देखिए मुझे लिंक दिख रहा है। अब लेट से मुझे क्या चाहिए कि जब मैं क्लिक में पे क्लिक करूँ ना, तो ये वेबसाइट मेरे लिए ओपन होना चाहिए। अब इस एचरेफ पे मैं वो लिंक डाल सकता हूँ। क्या सिर्फ मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक डाल सकता हूँ? नहीं। अगर मेरे को अपना कोई एग्जिस्टिंग एचटीएमएल फाइल जो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं उसको भी पुटअप करना चाहूंगा ना यहाँ पे, तो मैं उसको भी बहुत इजीली यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है। अब आफ्टर दिस आई विल से, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक दैट इज क्लिक मी, now see what will happen. It is going to redirect me to that page of decode crafters and it is going to get loaded on the same page. See this, मैं क्लिक में पे क्लिक करूंगा, अभी आपका HTML फाइल है विद द नेम ऑफ HTML1, और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं, you can see the website for the decode crafters is getting loaded. Now obviously this, I don't know why the CSS is getting disturbed now. ठीक है, but what I'm trying to say is, ये क्या हो गया इसको, कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इट इज redirecting me to that particular link. Let's say in place of decode crafters I wanted to open what, amazon.in is an example. I am opening Amazon. Okay. एंकर टैग। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक डालना चाहूंगा, हम तो क्या हो गया, इसको क्या हो गया, अरे यार, नहीं भाभी, Super बड़ा छंद है। अभी 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 मेरी अभी कुछ नहीं। You know, the class is not over. Actually, my screen got turned off suddenly. Let me just see the screen is visible. Yeah, perfect. चलिए, at least anchor tag complete करेंगे and then we close the session. अब यहाँ पे मैंने जो लिंक डाला decode crafters.in, इसके जगह पे मैं कोई और लिंक यूज कर लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ Amazon। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे आपको लिंक पे लेके चलूंगा फ्रॉम हियर, आई विल टेक यू टू दिस क्लिक मी। अब अगर हम क्लिक मी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यू विल सी दैट लिंक गेटिंग ओपन फॉर मी इन द सेम पेज। अब ये गड़बड़ है, अब मुझे सेम पेज पे लोडिंग नहीं करना है, मुझे चाहिए कि वो न्यू टैब पे खुले। तो वो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब उसके लिए हमें डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, दैट इज टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अब इसको मैं रिलोड करूंगा, ठीक है, एंड आई क्लिक ऑन दिस क्लिक मी। अब देखिए सेम पेज ओपन हो रहा है बट इन अ न्यू टैब। देखो मेरा मेन पेज को डिस्टर्ब नहीं किया, इसने क्या किया, उसने मुझे एक न्यू टैब पे सेम फाइल को ओपन करके दे दिया। नाउ दैट इज द एडवांटेज आई विल बी हैविंग इफ आई गो विद द एट्रीब्यूट टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। सो सी व्हाट हैपेंस इज टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक इज समटाइम्स लाइक इंटरव्यूअर्स आस्क लाइक why do we use target underscore blank? They will not be asking you like what is an anchor tag directly, because most of the students are already aware of the anchor tag. So basically to confuse the students, those who are coming for the interview, they will be asking you that okay explain me what is target underscore blank। या फिर वो आपसे घुमा के पूछेंगे कि अगर मुझे एक टैब सेक्शन को एक न्यू टैब पे ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें भी एक और कंफ्यूजन सेक्शन आता है जहां पे एंकर टैग और आईएमजी टैग को एक साथ यूज किया जाए। मतलब देखो एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एलिमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है क्लिक मी। अब अगर क्लिक मी क्या है मेरे लिए, एक एलिमेंट है, तो इन प्लेस ऑफ क्लिक मी, अगर क्लिक मी की जगह पे मैं यहाँ पे एक इमेज पुट अप कर दूं, तो वो इमेज क्या मेरे लिए एंकर टैग की तरह वर्क करेगा क्या? क्यों ना उसको भी एक बार देख लेते हैं, हमें ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। अब करूंगा क्या मैं, बी आर टैग, एच आर टैग, बी आर टैग, ठीक है। अब यहां पे मैं पुटअप करूंगा एंकर टैग, ठीक। और एंकर टैग के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूं पुटअप करने के लिए आईएमजी टैग, ठीक। एंकर टैग में क्या है, एचरेफ, एचरेफ, और यहां पे इसके पास साथ में उसका ऑप्शन रख दूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब एचरेफ में चलिए मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूं, क्या ले ले, google.com, नहीं यार गूगल भी नहीं रखते, छोड़ो ना, हम क्या करेंगे डॉट स्लैश। तो जो फाइल मैंने पहले बना रखी थी ना index.html, उसी को यूज कर लेते हैं, index.html। और आईएमजी टैग की जगह पे मैं इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। आईएमजी को मैं क्या बना रहा हूं, एंकर टैग का एलिमेंट। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों एलिमेंट और टैग के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो समझना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे लिख देंगे एसआरसी, ठीक है। अब एसआरसी पे मुझे कोई इमेज डालना है, क्या इमेज डाल सकते हैं, फिर से कोई इमेज उठा लेते हैं यहाँ से, और क्या चलेंगे, कोई तो इमेज हमें मिलेगा ही। HTML क्या पुट किया था हमने वहां पे, हाँ ठीक है HTML, ठीक है। तो HTML के लिए भी कोई इमेजेस यहाँ से उठा लेंगे। और इसके साथ मैं यहाँ पे एक और टैग डाल दूं और उसका नाम रखूंगा इमेज, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे एंड आई विल रीलोड द कंप्लीट फाइल। अब आप देख रहे हैं पूरा एक इमेज आ रहा, क्यों ना इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए। इमेज का मैं क्या करूंगा, इमेज की मैं विड्थ एडजस्ट कर दूंगा, विड्थ बोल दूंगा 100 पिक्सल्स और हाइट बोल दूंगा 100 पिक्सल्स, ठीक है। सेव दिस। अब अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक इमेज आ रहा है, कैन यू सी दैट। लेकिन जब मैं इस इमेज पे लेके जा रहा हूँ इट्स बिकमिंग अ क्लिकेबल लिंक फॉर मी। आप देखिए डिफरेंस, ये भी इमेज है, इस इमेज पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस इमेज के अंदर जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ इट इज बिकमिंग लाइक अ क्लिकेबल लिंक फॉर मी।
ठीक है, अब मैं इस इमेज पे जाऊंगा एंड आई क्लिक ऑन द लिंक, सी इंट्रोडक्शन टू द सेशन फॉर द HTML। तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया टू दैट पर्टिकुलर लिंक। मतलब एक इमेज भी लिंक की तरह काम कर सकता है। बकायदा अगर आपको टैग्स और एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंशिएशन है या जो सेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने IMG टैग के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने ऑल टैग के बारे में डिस्कशंस कर लिए, हमने हेडिंग टैग के बारे में डिस्कशंस कर लिए, हमने पैराग्राफ टैग्स के बारे में डिस्कशंस कर लिए, हमने ब्रेक लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इन सब के बारे में डिस्कशंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चल, so I will stop the port from here. And now, students, please respond if you have understood or not. If you have understood, please type 1 in the chat window. If not, you can go. Okay. Mimi, I've shared in the chat above. You can get it from there. Okay. So it's good that everyone has understood the concept pretty well. Yesterday, I had seen few students who were very new to HTML. What about those type of students who are very new to HTML? Are you guys able to understand whatever is being explained here? Because that is actual understanding whether you guys able to understand or not. Because see, जिनको already आता है उनके लिए उतना difficult नहीं होगा, लेकिन जो एकदम first time कर रहे हैं, क्या उनको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, that is more important for me. तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स थे जो कल मुझे बोल रहे थे that you are not able, like you are the very new into this HTML. So what about you guys? Are you able to understand? You just write down yes something that I have an understanding. जो बिल्कुल एकदम नए हैं HTML पे, या कोई ऐसे जो बिल्कुल नॉन टेक बैकग्राउंड से यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं. Sir, we will be getting certificate after completion of the course. Hope so. Hope so, Sanjana. I don't have that information. Uh, Devi. Yes, sir. It's very good to understand. Uh, uh, Only 2 classes, sir. Yesterday we had the introduction session when we had talked about the DOM, and today we had just set up the environment and we have just taken a basics of HTML elements, very basics, not that too advanced something. Just 2 sessions have been completed. Okay, Pritesh Pawar. Yes, H1. Yes, understood, sir. So yes, yes, sir. Understood is what? Element or a tag? Pritesh Pawar. Yes, sir. Understood is what? Element or a tag? अरे जियो शेयर, वेरी गुड. चलिए ठीक है. So can we end the session for today, guys? So thank you, everyone. Maybe I've shared it. You can get it from the chat window. Div tag आज नहीं दिनेश, हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है? So thank you, everyone. Thanks for having me. Please take care of yourself and your family. This is your trainer Deepak Mishra signing off. Thank you.